آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں یوٹیلٹی سٹورز پر فروش اشیاء کی قلت، دال چنا، سفید چنے، ثابت مونگ اور کالے چنے دستیاب نہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ریلیف دینے والے سٹور 60 لاکھ روپے کے مقروض ہو گئے۔ فیصل آباد کے یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں کی قلت، 2 ماہ سے زائد عرصہ سے یوٹیلٹی سٹورز پر دال چنا، سفید چنے، ثابت مونگ اور کالے چنے دستیاب نہیں۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام نوٹس لیں اور یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ریلیف دینے والے سٹور خود ہی مقروض ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی یوٹیلٹی سٹورز پر 60 لاکھ واجب الادا۔ شیف فلور ملز نے آٹے کی سپلائی معطل کر دی۔ 2 ماہ سے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ شہریوں کا حکومت سے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا کی فراہمی کا مطالبہ۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن اور فلور ملز مالکان کے درمیان معاہدہ طے نہ ہونا بھی آٹے کی قلت کی بڑی وجہ ہے۔ شہریوں نے حکومت سے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انتظامیہ متحرک، تمام ڈیلرز، مینوفیکچررز اور دکانداروں سے اسٹاک کی روزانہ تفصیلات طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے گھی اور کوکنگ آئل کی مصنوعی قلت کا حل نکال لیا۔ مینوفیکچررز، ڈیلرز اور ریٹیلر سے اسٹاک کی تفصیلات طلب کر لیں۔ 3 دن میں تمام تفصیلات ڈی او انڈسٹری کو دینے کی ہدایات۔ عمل نہ کرنے پر مینوفیکچررز، ڈیلرز اور ریٹیلرز کے پاس موجود گھی اور کوکنگ آئل ذخیرہ اندوزی تصور ہوگا۔ گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے، پرائس کنٹرول ایکٹ 2024۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ہول سیلر ہے، ڈسٹریبیوٹر ہے یا مینوفیکچرر ہے، وہ اپنا جو اسٹاک ہے وہ ڈکلیئر کیا کرے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہولڈنگ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو یا منافع خوری نہ ہو۔ ڈی او انڈسٹریز محمد عرفان نے کہا، تمام مینوفیکچررز روزانہ صبح سرکاری پرفارما مکمل کر کے بھجوائیں گے۔ ان کو 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اگر وہ 3 دن کے اندر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ادروائز کوئی اس نہ کرے گا، اس کے علاوہ اس کے خلاف ذخیرہ اندوزی کے تحت کارروائی ہوگی، اور جو ڈکلیئر کیا گیا سٹاک ہوگا اس سے زیادہ ہوگا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ محمد عرفان نے مزید کہا، سٹاک کا ریکارڈ بنانے کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور گرہ فروشی کو روکنا ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور چینی کے اضافی ذخائر کی برآمد کے باوجود مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں کمی، ایکس مل ریٹ 130 روپے سے کم ہوتا ہوا 120 روپے فی کلو تک ہو گیا۔ کی قیمت میں مزید کمی متوقع ہے۔ اضافی ذخائر کے باوجود حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت کے ساتھ پہلی بار چینی کا ریٹ بھی کم ہو گیا۔ ایکس مل ریٹ 130 روپے سے 120 روپے فی کلو تک ہو گیا۔ ماضی میں جب بھی چینی برآمد کرنے کی حکومتی اجازت ملی تو چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، مگر رواں سال پہلی بار سرپلس چینی ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت کے باوجود چینی کی قیمت کم ہو گئی۔ دکانداروں نے بتایا کہ قیمت ریٹیل میں 145 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ غریبوں کے لیے بہت بہتری ہے کہ 155 سے اب 145 میں آئی ہے، تو غریبوں کے لیے بھی ہے اگر تھوڑی سی مثلا کہ، تو باقی جو ایکسپورٹ وغیرہ ہوگی تو اس میں بھی بہتری ہوگی۔ خریدار بھی چینی کی قیمت کم ہونے پر خوش نظر آئے، کہتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر چینی کی قیمت کم ہوئی، جو کہ خوش آئند ہے۔ امید ہے قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ 155 سے 145 ملی ہے، چلے بڑی خوشی ہے کہ 10 روپے کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 10 روپے یکدم مہنگائی کے اندر چیز سستی ہوئی ہے، ورنہ نظر نہیں آیا اب تک کہ چیز مہنگی ہوئی ہے اور اس کے اندر درمیان میں سستی بھی مل رہی ہو۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں خواہش کرتا ہوں کہ مزید اس سے کم ہو۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 120 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ کرشنگ سیزن اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا، جس کے بعد چینی کی قیمت مزید کم ہونے کی توقع ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ افسران کے سبزی منڈیوں کے نمائشی دورے اور رسمی احکامات بے اثر، سبزیوں کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیور، ٹوبہ میں متعدد سبزیاں، فروٹ اور مسالے سینچری کراس کر گئے۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے سبزی منڈی جھنگ روڈ کا دورہ کر کے بولی کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں آلو درجہ اول 82 روپے، بازار میں 110 روپے فی کلو تک دستیاب۔ پیاز کی قیمت 127 روپے، بازار میں 160 روپے میں فروخت۔ ٹماٹر کی قیمت 87 روپے فی کلو، بازار میں 120 روپے۔ ادرک چائنا 775 روپے کلو، بازار میں 1100 روپے کلو تک دستیاب۔ سیب گاچا 220 روپے پر برقرار، بازار میں 240 روپے تک فروخت ہونے لگے۔
जंग में लहसन 530 रुपए, बाजार में लहसन 600 रुपए फी किलो दस्तयाब। अदरक 80 रुपए इजाफे से 980 रुपए, बाजार में अदरक 1100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। नए आलू की कीमत 120 रुपए, मार्केट में 140 रुपए हो गए। टमाटर की कीमत 2 रुपए इजाफे से 87 रुपए किलो, मार्केट में 100। नाशपाती 180 रुपए फी किलो, दुकानदार 240 रुपए फी किलो फरोख्त करने लगे। चिन्योट में चिकन की कीमत मुस्तहकम, आलू की कीमत 130 रुपए फी किलो, ताहम फरोख्त 160 रुपए में होने लगा। लहसन 540, अदरक 50 रुपए फी किलो, कमी के बाद 850 रुपए फी किलो, मार्केट में 1000 रुपए फरोख्त। फलों में सेब काला करू 210 रुपए फी किलो, केला 100 रुपए, अनार कंदारी 230 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गए। अक्टूबर टेक्सिंग में आलू की कीमत 130 रुपए, मार्केट में 150 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर सरकारी रेट 87 रुपए, फरोख्त 100 रुपए में। प्याज की सरकारी कीमत 125 रुपए, मार्केट में फरोख्त 150 रुपए फी किलो। लहसन 550, अदरक 970 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल का सब्जी मंडी जंग रोड का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शम्सुर रहमान, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने बोली के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर फल और सब्जियों की बोली की निगरानी जारी रखें। जंग में परदेसी मेहनत कशों के लिए रोटी का नवाला तलख्तर। घी, आटा, सब्जी महंगी होने के बाद होटल मालिकान ने सालन की कीमत भी बढ़ा दी। ढाबों पर दाल और सब्जी की प्लेट 150 से 180 रुपए तक पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग इंतजामिया के अवाम को रिलीफ फराहम करने के वादे वफा न हुए। मुर्गी, सब्जी और घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने परदेसी मजदूरों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया। रोटी कंट्रोल रेट पर दस्तयाब, लेकिन होटल्स पर सालन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। शहरी का कहना है कि फी प्लेट सालन की कीमत में इजाफे ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है। ये जी हुकूमत ने जो फैसला किया है कि 13 रुपए की रोटी, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है, आवाम भी खुश है। लेकिन एक मजदूर जो है वो एक 800 या 1000 रुपये कमाने वाला बंदा होटलिंग पे अगर वो आ जाए, वो 200-250 रुपये में अगर वो रोटी खा लेता है, तो इसका ये मतलब है वो घर क्या लेके जाएगा, हांडी नहीं पक सकती। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि और चीज़ों पे भी रद्द अमल दे। ढाबों पर दाल और सब्जी की प्लेट 150 रुपए से 180 रुपए तक जा पहुंची। चिकन और कीमा की प्लेट की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए से भी तजावुज कर गई, जबकि मयारी होटल्स के दाम कई गुना ज्यादा हैं। होटल मालिकान ने भी कीमतों में इजाफा बढ़ती महंगाई को वजह करार दे दिया। रोटी का रिलीफ तो हुकूमत ने जो दी है वो आवाम तक पहुँच रहा है, लेकिन सालन बहुत महंगा हो गया है। तकरीबन 40 से 50 रुपये किलो घी में इजाफा हुआ है। उसके अलावा अदरक महंगी है, प्याज 150 रुपये किलो है, अदरक 900 रुपये किलो तकरीबन पहुंच चुका है। चिकन जो 600 रुपये रेट है, लेकिन हमें 700-750 रुपये में मिल रहा है। तो उससे सालन महंगा है। बाकी चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले अवाम को। शहरियों ने अपील की है कि रोटी के निर्ख मुकर्रर करने के साथ दीगर अशिया के निर्ख भी मुकर्रर किए जाएं, ताकि सार्फिन सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। बरामदात में इजाफे के बावजूद तजारती खसारा बढ़ने लगा। सितंबर में खसारे की शरह 2% से ज्यादा रिकॉर्ड। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर गुच्छा कहते हैं कि ऐसे मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। बरामदात में बेहतरी आई तो दूसरी जानब तजारती खसारा भी बढ़ने लगा। बढ़ती बरामदात के साथ गुज़श्ता साल दरामदी वजन भी कम हुआ। ताहम रवां साल कपास की कम पैदावार से दरामदात बढ़ गई, जिससे तजारती खसारे में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माह अगस्त की निस्बत सितंबर में तजारती खसारा 2% तक बढ़ गया। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा का कहना था कि टेक्सटाइल 60% से ज्यादा बरामदी हिस्सा रखता है, जबकि इसकी दरामदात में खुद मुख्तारी जरूरी है। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ने का फायदा तब होगा जब खाम माल में खुद मुख्तारी होगी। कपास में गुज़श्ता साल जितनी बचत की, इस साल इतनी ही दरामद की जरूरत है। बरामदात तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। जैसा कि अभी हम बाहर से हमें ज़ाहिर आपको पता है कि हमारी जो है कॉटन रुई हमारी उसकी जो है प्रोडक्शन कम हुई है, वो बाहर से हमें उसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए रुई। तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा तजारती खसारा और। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा टोबा टेक्सिंग मुलतवी। वज़ीर आला के दौरा टोबा टेक्सिंग की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया को दौरे की तैयारियां जारी रखने की हिदायत दी गई। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लेना था। अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा टोबा टेक्सिंग मुलतवी। वज़ीर आला के दौरा टोबा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया को दौरे की तैयारियां जारी रखने की हिदायत। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लेना था। स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। ग्रैंड टीचर अलायंस की जानिब से क्लासेस का बायकॉट।
रवां हफ्ते लालियां, भवाना और चिन्योट के असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के उस्ताद ने एहतजाज किया तो हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साथिज़ा ने मिडिल तक क्लासेस का बाइकाट जारी रखने का फैसला किया है। कल से मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों की कॉल दे दी गई। शेड्यूल के मुताबिक जिला चिन्योट की तीनों तहसीलों में एहतजाज किया जाएगा। भुआना में सुबह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहरा होगा। 17 अक्टूबर को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालियां से AC ऑफिस तक मुजाहरा होगा। 19 अक्टूबर को चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर असातिज़ा एहतजाज करेंगे। GTA की मजलिस शुरा ने परसों जो हमें हिकमत अमली दी है, सबसे पहले जो है हमारा प्रोग्राम है कल यानी 15 अक्टूबर को हम भाना हायर सेकेंडरी स्कूल से AC ऑफिस तक रैली निकालेंगे और फिर 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता जो है वो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट से रैली निकलेगी, जिसमें तमाम टीचर्स जो हैं मेल फीमेल वो शिरकत करेंगे और DC ऑफिस तक वो रैली जाएगी। चिन्योट में उस्ताद को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के असातिज़ा ने एहतजाज किया तो हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया। जिला भर के PT टीचर्स का CO एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का कहना है कि स्कूल बचाओ तहरीक में असातिज़ा अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। टीचर्स ने हुकूमत से स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मिर्गी, दमे, सांस, TB समेत दीगर बीमारियों की अहम दवाइयां मार्केट से गायब। मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशानी से दो चार। कहते हैं कि मेडिसिन के लिए सारा दिन मार्केट में फिरना पड़ता है मगर दवाई नहीं मिलती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मरीजों को मेडिसिन मार्केट में अद्वियात के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। मिर्गी के मरीजों की टेग्राल, सांस के मरीजों की वेंटोलिन इनहेलर, दमा के मरीजों की मायरल P-Fort और मैग्रल मेडिसिन मार्केट में नायाब हैं। मरीज और तीमारदार कहते हैं अद्वियात के लिए सारा दिन मार्केट में फिरना पड़ता है मगर दवाई फिर भी नहीं मिलती। TB ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ नहीं आ रही, ਉਹਦੇ वास्ते मुश्किलात का सामना है, बाकी तो चीज़ें मिल रही मार्केट में नहीं मिल रहा है कहीं से भी। और आपसे गुजारिश है कि इनहेलर में मार्केट से मिलना स्टार्ट है, पूरी मार्केट में इनहेलर शार्ट है, मिल नहीं रहा। सदर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद फारूक आजम नारोका का कहना है कि TB के मरीजों की अद्वियात नहीं है जिससे मरीज परेशान हैं। इनहेलर पहले आए थे अब खत्म हो चुके हैं। मुतालिका कंपनी के साथ राब्ते में है और कमी जल्द दूर हो जाएगी। चांद शार्ट है जिसमें मेन है मायरन P TB के मरीजों के लिए, ये ज़्यादा शार्ट जो है इसके मरीज धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको नहीं मिली। उसके बाद मैगर गोली है आदत सर दर्द के लिए, वेंटोलिन इनहेलर वगैरह वो भी एक दफा सप्लाई है, उसके बाद फिर शार्ट है। अद्वियात की अदम फराहमी मरीजों के इलाज में मुश्किलात का बाइस बन रही है। हुकूमत अद्वियात की फराहमी मार्केट में यकीनी बनाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में मैनीफोल्ड सिस्टम खराब, वार्ड्स में ऑक्सीजन फराहमी मुतासिर। सिटी अस्पताल कमालिया में एक्सरे मशीन, AC और पंखे बंद, इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में मिनी फूड सिस्टम खराब। गुज़श्ता हफ्ते से खराब मिनी फूड सिस्टम ताहाल मुरम्मत न हो सका। मेडिकल वार्ड्स में दीगर वार्ड्स में ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर होने लगी। सिटी अस्पताल कमालिया में मौजूद एक्सरे मशीन 3 साल से खराब। अस्पताल के इमरजेंसी रूम को भी ताले लग गए। वार्ड्स में नस्ब AC खराब, पंखे भी चलना भूल गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। जनरल अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामिया की जानिब से मरीज बच्चों के खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का मेयार जांचने के लिए ABGS टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। मरीज बच्चों को मुफ्त टेस्ट की सहूलत मुयस्सर होगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फैसलाबाद में जानवर भी सेहत सहूलियात से महरूम होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद जानवर भी सेहत सहूलियात से महरूम होने लगे। जिला भर के 28 वेटरनरी अस्पतालों की तामीरात अल्तवा का शिकार। सिविल वेटरनरी अस्पताल 217 रब, NA 106 के 8 वेटरनरी अस्पताल तामीर और मरम्मत के मुंतजर। NA 105 के 5 वेटरनरी अस्पताल, NA 101 और 102 के 3 वेटरनरी अस्पताल की बहाली के काम न हो सके। समुद्री 1 चक झुमरा के 6 वेटरनरी अस्पताल के बिल्डिंग्स की बहाली के काम न हो सके। महकमा बिल्डिंग्स को वेटरनरी अस्पतालों की बहाली के लिए बजट ही न मिल सका। पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स की बहाली के कामों के लिए फंड्स की किल्लत। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री के लिए 3 करोड़ 45 लाख दरकार। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के लिए 88 लाख की जरूरत, जबकि पुलिस स्टेशन गढ़ के लिए 57 लाख के मजीद फंड्स दरकार। बिल्डिंग्स हुकाम ने पुलिस, स्पेशल एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस से फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद के पार्क तफरीह के आदे खुद सहूलियात से महरूम है। कहीं झूले नहीं तो कहीं घास गायब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। PHA फैसलाबाद शहरियों से तफरीह छीनने लगा। क्रिसेंट पार्क में इंतजामी अदम तवज्जो से बेशतर झूले टूट फूट गए। कई माह से झूलों की मुरम्मत ही ना करवाई जा सकी। शहरी पार्क से मुंह मोड़ने लगे।
फैसलाबाद में बारिश के असरात अब भी बाकी। शहर का मशहूर कश्मीर पार्क खस्ता हाल। गुज़श्ता माह बारिश के नतीजे में घास जल सड़ गई। इंतजामिया घास दोबारा ना लगा सकी। फवारा भी टूट गया। पार्क की देखभाल के लिए अमला तक गायब। सैर करने वाले अफराद ना होने के बराबर। फैसलाबाद का कदीम पार्क जदीद सिक्योरिटी से महरूम। बागे जनाह में वॉक थ्रू गेट, ना पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद। शहरियों की हिफाजत का जिम्मा हालात पर ही डाल दिया गया। पार्क में आने वाले बच्चे, बड़े और खातीन गैर महफूज। सिटी 41 सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाने लगा। मुख्तलिफ इंतजामी अफसरान शहरों को चमकाने में मसरूफ। सिटी 41 की आवाज पर झंग ब्यूटिफिकेशन शुरू। धज्जी रोड की नोक पलक संवारी जाने लगी। निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किया गया प्रोजेक्ट सुस्तरवी का शिकार था। सिटी 41 की निशानदही पर दोबारा शुरू कर दिया गया। जब वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये करवाया था। पार्क भी उन्होंने बनवाया था, ये भी उन्होंने कहा था। इतना लेट हो गया, वज़ीर दाखिला हैं, उनकी काविश की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है मुल्क, ये शहर हमारा तरक्की कर रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत जाम हो जाती थी पहले, यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी खड़ी हो जाती थी। अब ये बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चिन्योट में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत काम जारी। खुसूसी मुहिम के तहत 2 यूसीज में सफाई सुथराई की गई। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी जायजा लेने पहुंच गए। हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है कि मॉर्निंग में तमाम हमारा स्टाफ अपनी अपनी यूनियन काउंसिल जो पुरानी बाउंड्री है उसमें अपना काम करता है, और सेकंड शिफ्ट में ये सारे इकट्ठे होकर आज 38-39 यूनियन काउंसिल में आज की डिसिल्टिंग और जो उसका कैचअप डेज है कि हमने डिसिल्टेड मटेरियल जो कल और परसों डिसिल्ट किया था वो सारा मटेरियल हमने लिफ्ट करके यहाँ से बिल्कुल जीरो वेस्ट कर देना है। सीईओ बल्दिया चिन्योट ने मुहिम का जायजा लेते हुए बताया, यूसी 38 और 39 की डीस्लिटिंग के बाद कचरा उठाया गया। खबरदार, अब अपने बच्चों को गाड़ी देकर रोड पर हरगिज मत जाने दें, वरना मुलाकात हवालात में होगी। सीटीओ फैसलाबाद का सख्त एक्शन। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पहले मरहले में गाड़ी बंद, दूसरी मरतबा FIR दर्ज होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। सीटीओ के हुक्म पर ट्रैफिक अमला हरकत में आ गया। सड़कों पर वार्डन्स के नाके। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम में हंगामी बुनियादों पर तेजी लाने का फैसला कर लिया गया। सीटीओ फरहान असलम ने कम उम्र ड्राइवर्स की पहले मरहले में गाड़ी बंद करने और दूसरे मरहले में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत कर दी। सीटीओ फरहान असलम का कहना था कि हालिया दिनों में ज्यादा हादसा कम उम्र बाइक राइडर्स को पेश आए। हमने कैंपेन का आगाज किया है। उसमें इब्तदाई तौर पे तो हम उनकी गाड़ी बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने। गाड़ी बंद करके या बाइक बंद करके उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे एफिडेविट ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर अगर वार्निंग के बाद भी इस तरह चलता रहता है तो फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम ने वालिदैन से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से दूर रखने की अपील की है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में डॉलर ईस्ट की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मुमताज बाजवा, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हाफिज राशिद महमूद की खुसूसी शिरकत। डॉलर ईस्ट ब्रांच से शहरियों को डोर स्टेप पर करेंसी एक्सचेंज की सहूलत फ्राहम होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मुमताज बाजवा, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन हाफिज अरशद महमूद और दीगर ने फीता काट कर डॉलर ईस्ट की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट मुमताज बाजवा कहते हैं, शहरी रकूम की तरसील की खिदमात से फायदा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि वेल नाउंड पहले ही कंपनी है डॉलर ईस्ट जो पहले फैसलाबाद में हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये इस एरिया के लिए मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को कार पार्किंग का इशू था, कचहरी बाजार जाने का इशू था, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग नदीम मुस्तफा भी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन हाफिज राशिद महमूद बोले, डॉलर स्टेट ने फैसलाबादी अवाम को तोहफा दिया है। सबसे पहले मैं डॉलर ईस्ट की सारी की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बड़ा ग्रेट डे है कि इनकी इनॉग्रेशन है 4th ब्रांच की। बेसिकली ये कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो जिस तरह आजकल इन्वायरमेंट भी है और बिज़नेस की रिक्वायरमेंट भी है कि उनको डोर स्टेप पे सर्विसेज चाहिए, तो उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया है। डॉलर्स जो है वो फैसलाबाद से प्यार करता है और फैसलाबाद वाले जो हैं वो डॉलरीज से प्यार करते हैं। यही वजह है कि माशाल्लाह हमने यहाँ पे अपनी चौथी ब्रांच बनाई है। पहली ब्रांच जो है वो हमारी जो है कचहरी चौक में है, दूसरी चिन्योट बाज़ार में है, तीसरी जो है वो डी ग्राउंड फैसलाबाद में है और चौथी जो है अभी हमने ये मदीना टाउन पे
बनाई है। शुरा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी तलक, उबैदुल्ला शेख, एग्जीक्यूटिव FCCI मेंबर राना समीर भी शरीक हुए। कैमरामैन की नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।